the crop and crop production. This is the first topic of class 8 in science. Dear student, first try to create your mind to know the importance and need of that topic. It means every topic is interesting and that has certain use in your life. That's why first try to understand what is the need of that, why we are going to study. Actually, the question is this, that the population is rising day by day and the land area is maximum occupied by 130 crore population and there is no agricultural land or that is decreasing day by day. Then how we will get the food, diet, nutrient? And you know, survival of a person or any living is only possible by the means of plants, greenery. Now the question arises, what is the difference between a plant and a crop? This makes the topic interesting. One plant we can grow for our ornamental way or for decoration, but that can't complete the demand of your family for food. एक पौधा, चाहे वो पल्सेस का हो, चाहे वो ग्रेन्स का हो, चाहे पिलेट्स का हो, कुछ भी हो, ग्राम्स का हो, तो क्या वो घर की एक आदमी की भी भूख मिटा सकता है? नहीं. तो when one individual plant is there, that is the plant, and when a group of plants are there to complete the demand of the population, is defined as crop. It means crop is cultivated in a large area. Only this is possibility by which they can complete the demand of people. Now come to the next thing. In this world, plants are only source of energy for livings. Take the example of man or any animal. Directly or indirectly they are dependent on plant, because plant can only make their food material, and those who can make their food material they are called as auto, means होता है खुद, और crop means होता है life, tropical mode of life. So those who can prepare the food by own self, like the photosynthetic, you know the definition of photosynthesis, that under presence of chlorophyll, the aerial part of plant which contains the chlorophyll combines with the carbon dioxide and water and makes the glucose and starch, which is the whole energy of animal or plant. Both can't survive without this, because it is combust in our body, and after combustion the huge amount of energy is being released, which is stored in a battery-like structure that is called as ATP, adenosine type phosphate. And whenever it is required, it is encashment from the ATP. ATP से हम इनकैशमेंट कर लेते हैं, ATP से हम निकालते रहते हैं. जैसे बैंक में पैसा रख दिया और धीरे धीरे निकालते गए. यानी अगर हाथ पैर चल रहा है तो उसके लिए एनर्जी है, जरूरत. और हर लिविंग की एनर्जी को पूरा कौन करता है? प्लांट. तो जब लैंड ही घटती जा रही है
ऐसी स्थिति में किस तरीके की क्रॉप बोई जाए, क्रॉप से मैक्सिमम यील्डिंग कैसे की जाए, फ्रूटिंग प्लांट से कैसे डिमांड पूरी की जा सके पूरी पॉपुलेशन की, ये सब पार्ट इसी में आते हैं। ऑटोट्रॉप को भी दो हिस्से में बांटा गया है। एक तो जो हरे प्लांट है ग्रीन, इसमें मोनोकाट और डाइकाट पढ़े होगे बेटे, बहुत टफ नहीं है। मोनो माने एक, काट माने क्या होता है, फलियां। अगर हम किसी भी चीज जैसे गेहूं है, चावल है, ग्रेनरी जितनी भी है, वो सब किस में आ गई, हमारी व्हीट और तमाम चीजें मोनो में, उसके दो फली नहीं निकल सकती। बट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द पल्सेस लाइक द ग्राम, sweet pea, so that seed can be broken into two parts. They are called as dicot. They both are green in nature and they can synthesize their food material by own self and provide the energy to the whole world. Now, autotroph are those who can prepare their own food material by own self. अब दो तरीके के हुए, कुछ बैक्टीरिया भी कलाइड होते हैं, उनमें भी कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, आगे पढ़ोगे। तो उनकी जिंदगी को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस कहा, फोटो माने लाइट, सिंथेसिस माने प्रिपरेशन। अंडर प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट कैन प्रिपेयर द फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लूकोज। इन द सेम वे some bacteria are also capable, bacteria and fungi, who can prepare their food material. They are called as chemosynthesis या chemosynthetic. कीमो माने केमिकल, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय हाइड्रोजन जैसे सल्फाइड और CO2 को आपस में कंबाइन करके फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि पढ़ोगे। अब फिर बात आती है सम टोटल बाय विच वी कैन इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन एज पर द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन राइजेस इन मल्टीप्लिसिटी, इन मल्टीपल proportion. In this situation, how the quantity of the productivity can be increased? A different branch is there that is called as agriculture. Previously, in our period, agriculture was very important subject, and now again, when you are studying, that is the important one. Now, in agriculture, we can study how the soil is made for sowing a seed for larger productivity, how the quality of breed can be improved, that is specialized branch that is called as plant breeding. अगर हम इसको अपनी भाषा में बात करें तो जो किसान करता है किसी फसल को पैदा करने के लिए, वो सब आपको पढ़ना है और वो अच्छी चीज है। आप भी तो कोई चीज ग्रो करोगे, ग्रो करना चाहोगे कि प्लांट बने और प्रोडक्शन बढ़े अपनी एग्रीकल्चर लैंड से। यहां तक कि साइंस इतना आगे आ चुकी है कि कई पाइप में वाटर फ्लो किया करता है और उस पाइप में जगह जगह पर पोर्स होते हैं और एक कमरे में ही सीढ़ी के तरीके से बना दिया जाए कई पाइप के नेटवर्क को और उनमें पौधे डाल दिए जाए, प्लांट्स। तो क्रॉप कैन बी डेवलप्ड by supplying the nutrient in that pipe and water in that pipe. It means this is also hydroponics. In later on topic you will study. इस तरीके से ये देखा जाए और फिर उसके बाद में आप आ जाइए हॉर्टिकल्चर पर। कल्चर
means that medium in which any thing can be grown, that is called culture medium. जैसे सिरके के अंदर गुड़ घोल दिया जाता है और कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो दैट इज द कल्चर मीडियम. Horticulture is the same thing. How we can prepare the new varieties of the fruiting plant, how can improve of their production, that is called as the horticulture. Agriculture, how we can increase the productivity of food or leguminous plant. Leguminous plant उन्हीं को कहा जाता है जिसमें दो फलियां होती हैं, because that is the primary source of protein, and that protein is consumed in form of protoplasm in each and every cell, and we are living. अगर सेल बन ही नहीं सकती बिना प्रोटीन के, यानी और प्रोटीन ही से पूरी बॉडी बनी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देने में खर्च हो जाएगा, बचेगा क्या? फैट और प्रोटीन. तो मैक्सिमम प्रोटीन से ही प्रोटोप्लाज्म का नाम पड़ा. अब आई बात ये कि हॉर्टिकल्चर की स्टडी, फ्रूटिंग प्लांट जैसे कीवी ले लीजिए, कीवी पहले कोई जानता ही नहीं था, अब आज पूरे मार्केट में बिक रही है, बिकॉज डेंगू का इलाज वही है और उसके कारण लोग उसको खरीदने लगे. और यहां तक कि जहां वो नहीं भी होती थी उसके लिए हिली क्लाइमेट चाहिए, लेकिन वो अब ड्राई क्लाइमेट में भी हो रही है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी हो रही है. ट्रॉपिकल उसे कहते हैं जहां पर हीट ज्यादा होती है, और टेम्परेट उसे कहते हैं जहां पर बहुत कोल्ड रहती है. तो कोल्ड क्लाइमेट को बिलोंग करता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी से लेकर सब चीजें किसान ऐसे कल्चर मीडियम को देकर के यहां ग्रो करने लगे हैं. दैट इज आल्सो अगेन फ्रॉम हॉर्टिकल्चर. नाउ क्रॉप्स according to the rainfall we can divide it into two parts. One is Kharif and other one is Rabi. We know Kharif is such type of crop which requires rainfall or monsoon rain more than 100 mm. इट मीन कि बरसात में ही, रेनी सीजन में ही वो ग्रो कर सकते हैं. अब आप दिमाग अपना दौड़ाओ, कौन सी फसल ऐसी है जो कि रेनी सीजन में होती है? रेनी सीजन में पैडी, राइस और इन्हीं सब का रहता है, और वो ऐसा एक सीजन है कि कोई भी प्लांट होगा वो ग्रो करेगा. इतनी मैक्सिमम हार्वेस्टिंग होती है. और ये कब से चालू होगा? 15 जून से हम जानते हैं कि रेनफॉल होती है. उससे आगे का पीरियड यानी केवल सितंबर तक जो पीरियड है वो हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खारिफ. और जो विंटर सीजन आ गया उसमें जो चीजें होती हैं, आप दिमाग लगाकर सोचो विंटर में क्या क्या है. मिल्क खाए, आप मटर खाए हैं, चना खाए हैं, ग्रैम, स्वीट पी, पल्सेस जितनी भी है, वो सब चीजें ग्रो होती विंटर में. उसे हम राबी कहते हैं. अब आ जाइए एक बात और, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का साधन क्या हो सकता है? एक्चुअली 3 फर्टिलाइजर है जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. 3 चीजें, एनपीके. तो जैसे आज मैंने किसी पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है, किसी को फास्फोरस की जरूरत है, किसी को पोटेशियम की जरूरत है. तो साइंटिस्ट क्या करता है? जैसे रबी फसल में लगाया उसने दाल को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस, याद रखिएगा. दैट कैन फिक्स द नाइट्रोजन ऑफ एयर एंड दे मेक द पल्सेस
क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनी है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन और मिल जाए ऑक्सीजन तभी प्रोटीन बनती है। तो वो फसल नाइट्रोजन पूरी खत्म कर देगी सॉइल की। अब उसके बाद ऐसी फसल को बोया जाए जिसको नाइट्रोजन की जरूरत ना हो, नहीं तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस फील्ड में क्या हुआ, नाइट्रोजन सोख करके खत्म हो गई। अब मैं चाहूं कि फिर उसी प्लांट को बो दूं उसी में, तो क्या वो ग्रो करेगा? नेवर भी। और इसी को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। और दूसरी बात, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका और भी हो सकता है कि हम लैंड को छोड़ दें कुछ दिन के लिए, जिससे कि उसमें फर्टिलाइजर्स और सब चीजें सराउंडिंग से सॉइल एरोजन द्वारा आ जाए, इकट्ठा हो जाए। और इकट्ठा होने के बाद फिर उसमें हम फसल को उगा सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं। अब एक जैसे बच्चे के तरीके, बच्चे के लिए देखभाल के लिए सोचा जाता है, वैसे तुम सोचो, तुम भी लिविंग हो, प्लांट भी लिविंग है। प्लांट की रूट नीचे जाती है, तो जब तक सॉइल सॉफ्ट नहीं होगी तब तक रूट नहीं जा सकती। यानी 1/3 वाटर हो, 2/3 एयर हो, क्योंकि आप भी सांस लेते हो, वो भी सांस लेते हैं। आप यूं मान के चलो जिंदगी को। और इस तरीके से उसी सॉइल में फर्टिलाइजर मिलाया जाता है, जिससे कि उस प्लांट की जो नीड है वो पूरी हो सके। पहले एनपीके मिलाने से लॉस भी आया। लॉस यह आया कि पोल्यूशन रेटिंग बढ़ी। जैसे दिल्ली को ले लीजिए, 150 के बजाय, पीपीएम के बजाय वहां पर पोल्यूशन चल रहा है 90। तो क्वेश्चन ये उठता है, साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि अब किया क्या जाए। तो बेस्ट वे है कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें। दैट इज सम व्हाट इट इज नोन एज ह्यूमस आल्सो and compost also that has no NPK, but that is the best substitute of plant growth. So that's why we are utilizing the organic fertilizer nowadays, and that is also only the best way of crop productivity without harming the environment, because atmosphere is also factor. भाई नाइट्रोजन से पढ़ा होगा आपने, वाटर जैसे जुड़ता है नाइट्रिक एसिड बन जाती है। तो जब सब एसिड ही हो जाएंगी तो आप स्किन, आप खुद ही नहीं जिंदा रहोगे, तो कैसे बनाओगे? कैसे जिंदा नहीं रहोगे? तो क्रॉप कैसे खाओगे? क्रॉप का कोई यूज है आपके लिए? नहीं। इसलिए क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो लिविंग और लिविंग का ही बाई प्रोडक्ट है, स्पिरिट मटेरियल, जैसे गोबर है, काऊ डंग है, तमाम चीजें। तो इस तरीके से यहां तक मैंने ये बताया कि क्रॉप रोटेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्रॉप कितनी हैं, उनमें कौन कौन सी आती है, किस किस सीजन में होती है, और फिर ये बताया कि व्हाई एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इज हार्मफुल एंड व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट।